आपकी बात को हमने सुन ली। बात आएगा यहाँ बिजनेसमैन असेंबली मेंबरों की तनख्वाह क्या रिपोर्ट पेश करने जा रहे हैं, लेकिन जो कमेटी कैजुअल लेबर्स की रेगुलराइजेशन के लिए बनी है उस रिपोर्ट को पेश करने का तस्करा तक नहीं। अच्छा, तशरीफ रखिए, आप तशरीफ रखिए, फरमाइए क्या बात है। आ गई बात, वो तो आ गई बात, आप तशरीफ रखिए, वो तो बात आ गई है, आप तशरीफ रखिए मैडम तशरीफ रखिए। श्रीमती शकुन परिहार AQ number 48. Minister in charge of Social Welfare. So AQ number 42. The district-wise number of posters for women in UP, Jammu and Kashmir, managed by Higher Education Department, Skill Development Department, and Social Welfare Department is reproduced as under name of the college, Jammu GCW, Parade Ground, Jammu, Higher Education Department, 200 capacity, expenditure 3.30. GCW, Gandhinagar, Higher Education Department, capacity 252, expenditure 0. Udhampur, GCW, Udhampur, building has been hired, funded by Higher Education Department and Social Welfare Department, capacity 27, expenditure 3 lakhs. Rajouri, JDC, Coastal 1, PMDP, 100 capacity, expenditure 1 lakh. JDC, Rajouri 2, लंबा जवाब है, वो सवाल पूछिए। सर पढ़ा हुआ तो सबूत किया जाए। सर मैडम जो डिटेल्स दे मोस्टली जो है हमारी गर्ल्स जो है एलिमेंट्री एजुकेशन तक ही सीमित में रह जाती है। सर उनके लिए मैडम ने क्या सोचा हुआ है आगे कि उनके लिए कोई वुमेन हॉस्टल मिलेगा ताकि वो ड्रॉप आउट रेशियो जो है वुमेन का एजुकेशन का वो कम हो जाए, क्योंकि डे बाई डे जो है ड्रॉप आउट रेशियो इंक्रीज कर रहा है। मैडम क्या सोच रही है कि हमारे वहाँ की बच्चियाँ जो हैं मोस्टली गांव से लोग आते हैं और बेटियों को नहीं पढ़ा पाते हैं, तो मैडम एश्योर करें कि आगे कोई हॉस्टल बनेगा ताकि वो अपनी फर्दर एजुकेशन जो है वो कंप्लीट कर सकें। Upon the promulgation of the Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement, the department is currently examining the modalities for covering the balance funds as per revised rates, guidelines. Subsequent steps will be taken based on the outcome of the examination and in accordance with the applicable financial rules. Thank you. आप वही सवाल पूछ रहे कहाँ है? Sir, AQ number 620, Part A, awarded 2022 for
highlights the valley's immense tourism potential and its recognition as an preferred offbeat travel destination in the country. Part B. No, sir. The department is not aware of any specific scheme of Government of India which is exclusively meant for developing offbeat destinations or any separate budget allocation for the purpose. Part C. Tourism Department has already identified Gurez as a potential offbeat destination. As and when a scheme is launched by Government of India in this regard, Gurez will also be recommended for development as an offbeat destination. Meanwhile, during the current financial year 2025-26, the Directorate of Tourism Kashmir has undertaken a dedicated project under the CAPEX budget for the upgradation and development of Gurez as a tourist destination. The execution of the project is and the necessary formalities are being completed in coordination with the District Administration Bandipora for identification and transfer of land for the project. मैं satisfied हूँ इस क्वेश्चन से, लेकिन एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन सब्सिडी देते हैं हम आयर टावर में ताकि टूरिस्ट यहाँ पहुंचे, पहले देते थे, अब तो वो भी बंद किया है। क्या गुरेज में एक हेलीकॉप्टर सर्विस चलाई जाएगी ड्यूरिंग विंटर्स और समर्स? ऐलान किया था कि हम वहाँ एक लाइट एक साउंड शो के लिए एक प्रोजेक्ट देंगे और उसमें मैं पूछना चाहता हूँ कि ताकि वहाँ टूरिस्ट जाए शाम को बैठे एक दो घंटा उसमें बिताए, क्या वो प्रोजेक्ट सेक्शन हुआ अभी तक क्या नहीं है? स्पीकर साहब, क्यू नंबर 130. Sir, the construction work of the shopping complex at old SRTC yard Anantnag was initially executed by the urban local body. Department before handed over to the R&B department, no work has been executed by the R&B department on this project to date. During the handover process, it was observed that the project was executed without obtaining the required technical sanctions. Also, a significant portion of the work was carried out beyond the allotted scope without an extension of the contract or a formal supplementary agreement. The third-party vetting of structural drawing has also not been conducted. Queries regarding these issues were raised with the ULB department. However, no response has been received so far. Recently, the government of Jammu and Kashmir, by Government Order number 168, JK bracket NUD bracket clause of 2024 dated 14/8/2024 constituted a high-level committee headed by the Director of Urban Local Bodies, Kashmir, to address these concerns. And as and when the UDT respond to the observations of this department, work on the said work shall be started in line with financial code and TFR manual of works. No such communication has been received from the intending department. As and when a formal request is received from the tourism department, the process for tourism center shall be initiated as per the norms governing the said construction. Part C, construction of the marriage hall. The Office of the Executive Engineer R&D Division Anantnag received a communication from Executive Officer Municipal Council Anantnag and accordingly a DPR amounting to rupees 499.25 lakh have been prepared and submitted to Executive Officer Municipal Committee Anantnag. However, the administrative approval is awaited with regard to the new Deputy Commissioner Office complex in Anantnag. A preliminary project report amounting to rupees 106.87 crores has been prepared for construction of the mini secretariat and has already been submitted to the Office of Deputy Commissioner Anantnag by Executive Engineer PWD R&D Division Anantnag. Since the R&D department is an executing agency and takes up the work of other departments in hand only, when formal request is placed by the intending department for formulation of DPR, followed by AAA, release of funds through fee, and land free from any influence is also made available. With regard to the new Deputy Commissioner Office complex in Anantnag, although no formal letter has been received for the preparation of DPR, it is currently under preparation in close consultation with the Chief
architect, what shall common once land is free from any example, frequency of land, and funds are made available in accordance with the TFR and applicable financial rules. और कुछ मुझे मिनिस्टर साहब बताइए यहाँ पर कुछ लैप्सेस हो गई हैं। एक तो आप कहते हैं कि यूएलबी डिपार्टमेंट ने ये काम शुरू किया था विदाउट टेक्निकल सर्विस, विदाउट सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट और थर्ड पार्टी में भी तीनों चीजों में लैप्सेस हो गई। जब आपको ये हैंड ओवर किया उसके बाद इस कमेटी में भी वही लोग जज कर रहे हैं जिन्होंने लैप्सेस थे। आपने डायरेक्टर यूएलबी को भी चेयरमैन बनाया, उस कमेटी की तारीफ की। अच्छा, वो भी 2024 को कमेटी बनी, अभी तक उसकी रिपोर्ट आई नहीं। सर मैंने ये पूछा था इनको, तो अभी इनकी रिपोर्ट जो है पूरी तैयार नहीं हुई, फिर भी मैंने एक साल हुआ, साल से ज्यादा टाइम। हाँ सर मैंने रिपोर्ट नहीं आई, इतने बड़े लैप्सेस हो गए। सर वही मैंने आपको कहा कि मैंने इनको फास्ट ट्रैक से शुरू किया है, पहले सब कुछ ये बंद पड़ा हुआ। जब से सरकार ने टेक ओवर किया है हमने काफी चीजें ऐसे कई प्रोजेक्ट हैं जो बिल्कुल खाली पड़े हुए, जिसको किसी ने शुरुआत की, स्टार्ट किया, फंडिंग नहीं की और ना उसको देखा गया। पर ऐसे काफी सारे पूरे जम्मू कश्मीर यूपी में ये प्रोजेक्ट हैं और अभी हमने काफी सारे टेकअप किए हैं और बहुत जल्दी इनसे हम गौर कर रहे हैं, फिर नतीजा आएगा। सर AQ नंबर 112 इनसे पहले ही हो गया, इनसे इन्होंने नहीं किया, इनसे पहले नागेंद्र हसन बेग साहब। हाँ, नागेंद्र हसन बेग साहब सर AQ नंबर 112 मिनिस्टर इंचार्ज आरएनबी। सर अगर सच बोलूंगा तो फिर शायद क्वेश्चन आगे यही रह जाएगा, फिर बातें होनी शुरू हो जाएंगी। कोई बात नहीं, अगर सच ना ही बोलूंगा तो अच्छी बात है, और बोलेंगे तो बड़ा कुछ हो जाएगा, और सच्चाई बोलेंगे तो ये भी जवाब चारों की चोरी करके आए। जवाब बोले मत बुलाओ, अगर सच बुलाओगे तो परसों ही जवाब दे देंगे आपको। इनके साथ क्या बोलूंगा पढ़ने तो बड़ा कुछ भूल जाएगा। मिनिस्टर साहब ये आप नहीं सवाल करते रहते हैं, ये आप नहीं जवाब दे रहा हूँ, अपना कुछ नहीं आप नहीं जवाब दे रहा हूँ, ये आपसे ज्यादा बात का जवाब दे रहा हूँ। आपका कुछ नहीं है, अपने ये छोड़िए, आपने घोषणा
सवाल तो जवाब तो पढ़नी चाहिए ना, आप बहन में सवाल issue number 1.2. Speaker sir, the formulation of plans and allocation of funds in respect of roads and buildings are taken by the government in accordance with the established norms and approved procedures. The process is guided by the assessed requirements received from the field, keeping in view the availability of resources as well as the recommendations of the Honorable MLA and District Government Council members. The objective is to ensure judicious and need-based allocation of funds for the execution of governmental work and maintenance activities under various schemes of the department, so as to achieve balanced infrastructure development across all areas. However, the constituency was aware of funds allocated as per the length of road and recommendations received by department from the respective constituencies of Honorable MLAs during the year 2025-26 under cities and towns. For those schemes in UT of J&K in the next at the next stage. जो उनके पास जो रिसोर्सेज थे लास्ट ईयर उसके बाद जो इनके मसाइल थे जो इनके रिसोर्सेज थे जिस रेशनल और जस्ट मैनर में इन्होंने कोशिश की है सबको अकोमोडेट करके सबके सामने और बारामूला कस्बा इस वक्त जो बारामूला की आरएनबी का डिवीजन है इसके बाद मैं सिर्फ इससे एक चाहूंगा और वो जब आप उसका इसकी जो रिस्ट्रिक्शन क्या है मशहूर हूँ आप जो कर सकते थे स्वागत किया है तो उसको मुझे बारामूला के लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हर सेक्टर हमारे कंप्लीट किया है लोगों में अल्लाह के फजल करम से इज्जत के साथ जा सकते हैं अच्छा काम करें आगे भी अच्छा करेंगे एक एश्योरेंस चाहिए बारामूला जो सेकंड क्वार्टर इसके लिए वो एश्योरेंस तो मैं बहुत मशहूर हूँ इंशाअल्लाह मैं बारामूला सेक्टर को एक उच्च Honorable Speaker sir, Honorable MLA साहब का कंसर्न फॉरलाइज और है बारामूला Honorable सिंह साहब ने कभी रिव्यू मीटिंग ली थी हमें जो माली से मिला काफी उनकी एक्सपेंडिचर था अच्छा हुआ पड़ा था तो उसको अकोमोडेट करना पड़ा और हमने ऑनरेबल MLA को इतना अकोमोडेट नहीं कर सके पिछली लाइबिलिटीज बहुत ज्यादा थी लेकिन फिर भी हमने कोशिश की कि नए काम काफी से लिए लेकिन एक चीज मैं ऑनरेबल स्पीकर साहब यहाँ पे आपके कहना चाहूंगा आपकी इजाजत से कि इससे पहले जो मैगनाइज होती थी वो जब भी हुआ पड़ा उसकी जो क्वालिटी थी ठीक नहीं होती थी बट इस साल जो मैगनाइज हो रही है उसमें मेरे डिपार्टमेंट ने बहुत सख्ती की हुई है और मैं ऑनरेबल MLA जो दूसरे अपने ऑपोजिशन से मैं इनसे भी कहूंगा जहां जहां शिकायत है आप बताइए वहां सख्ती करेंगे और दोबारा वहां मैगनाइज कराएंगे ठेकेदार को तब तक पेमेंट नहीं देंगे मैंने डायरेक्ट अपने डिपार्टमेंट को कहा कि 6 महीने उसको देके उसके बाद पेमेंट करेंगे और अगर कहीं कंप्लेंट होगी बोलने तो नहीं है और आप सर पहले मुझे कंप्लीट तो करने दीजिए सर ऑनरेबल स्पीकर सर
सर मुझे इनको ऑनरेबल मिनिस्टर ने बड़ा तफसीलन जवाब दिया, उन्होंने जवाब ऑनरेबल स्पीकर सर, सर मैंने खत्म ही नहीं किया, ये कौन सा तरीका पहले मैंने कभी खत्म ही नहीं किया। अच्छा आपने खत्म नहीं किया ना, तो इसलिए सर मैं आपसे मैंने ऑनरेबल एमएलए से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ये सरकार उमर अब्दुल्ला सरकार बड़ी ट्रांसपेरेंसी से काम कर रही है, और जहां भी ये जाएंगे अगर वो इनको कोई शिकायत होगी तो ये हमें बताएं, चाहे मेरे डिपार्टमेंट को बताएं या मेरे नोटिस में लाएं, जहां भी एक्शन की जरूरत होगी। अगर दोबारा उसको अगर कोई मेट्रोफाइल खराब होगी या दोबारा डालने की जरूरत पड़ेगी डलवाएंगे, और ये खुद भी इंश्योर है, खुद भी डलवाएं। वहां कहीं ऐसा क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज किया जाता है तो ऑफिसरों के खिलाफ भी हम एक्शन ले रहे हैं। स्पीकर सर, मिनिस्टर साहब ने बड़ा तफसीलन जवाब दिया, मैं अप्रिशिएट करता हूँ इनका कंसर्न, कह रहे हैं ट्रांसपेरेंट है, रिसोर्स रिकमेंडेशन, पर मैं अपने जिला की बात करूँ, ऑल टाइम लो हम अपनी प्रोजेक्ट स्कीम को सस्टेन करने में आने वाले हैं, और सिर्फ जिला उधमपुर के साथ ये डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड क्यों किया गया है? जैसे उधमपुर है नॉट बी एबल टू स्टार्ट सिंगल वेव स्कीम। हमारा सांबा मानसर का जो स्टेट हाईवे है पिछले तकरीबन 80 दिन से बंद पड़ा है, स्टेट हाईवे। आपको मानसर जाना नहीं पड़ा, कोई मानसर और इस ऑलमोस्ट इंटरनेट, और आपने तो प्रायोरिटी 1 अभी क्लियर किया है, रोड की रिस्टोरेशन भी बन सके उधमपुर। मेरा आपके माध्यम से सरकार का एक सबमिशन है, दैट्स नॉट बी पर्सनल अबाउट, लेकिन हमारा मिशन है जो बाकी मैंने डायरेक्ट प्रोसेस के साथ इनिशिएट किया। हमारा पिछले 10 साल में हमारी एजुकेशन क्या रहती है, और P1 में भी डिस्क्रिमिनेट किया गया, और P1 के साथ में रिस्टोरेशन और ट्रांसपोर्टेशन कृपा करके सरकार करना चाहता है। पूरा सब मैंने जब ये ब्रीच हुआ सर, तो मैंने आपको पूछा कि किसी तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात मैंने कहा रास्ता बात में, क्योंकि वो सड़क जो है वो मुश्किल, वहां से सारी ट्रक सर्विस जो है वो वहां से ही आते मानसर से होके, और सारी जो ट्रैफिक है वो डाइवर्ट हो गई जम्मू की तरफ। बच्चों का सांबा का कौन सा नामांकन है, वहां से मजदूर नहीं आ सकते, गाड़ियां बंद है, शो की गाड़ी चलती है, और डिपार्टमेंट का यह हालत है कि आज तक रेस्टोरेशन नहीं कर सके, बाकी क्या कर सकते? सवाल इस बात का है कि रेस्टोरेशन का काम नहीं हो पाया, तो बाकी क्या कर सकते? आप क्या क्वालिटी बनाएंगे, क्या नहीं होगी, तो रास्ता लोगों को देंगे। मैं उम्मीद करता हूँ एक्शन ले लीजिए और रास्ता खुलवा दीजिए लोगों का, ताकि लोग आ सकें। ऑनरेबल स्पीकर सर, राकेश राव बड़े सीनियर मेंबर हैं हाउस के, मिनिस्टर भी रहे हैं, लेकिन है कि हमारे ही हैं फिलहाल तो हैं, तो गलती भी प्रस्ताव किया, तो गलती भी प्रस्ताव किया। ऑनरेबल स्पीकर सर, जहां तक मानसर नट रोड का जिक्र किया साथिया साहब ने, ठीक है, मुझे फोन किए सर, वो रोड हमने टेम्परेरी रिस्टोर किया है, तो लेकिन उसके लिए पैसा दिया है, टेंडर हो गया, मेरे ख्याल टेंडर हो गया और जल्दी से परमानेंट रेस्टोरेशन करने जा रहे हैं। तो शायद आपको एक्शन नहीं बताया, मैं आपको बोलूंगा एक्शन को आपको मिले। आप बोलिए। की मैं बात करूं, वहां पे टेंडर हुआ, वहां पे ठेकेदार ने काम करना शुरू किया, सब आपस में मिली बैठा ऊपर से लेके नीचे तक,
एक रोड को 3 बार ब्लैक टॉपिंग की गई, उसके बाद मैंने सभी को इंटीमेट किया, चाहे कमिश्नर सेक्रेटरी हो, चाहे मंत्री जी हो, चाहे जितने भी हो। उसके बाद भी ठेकेदार ने काम करना बंद कर दिया, कहता मैं इससे ज्यादा अच्छी क्वालिटी नहीं दे सकता। एक बार वोट डालने के बाद दूसरी बार वोट डाली, दूसरी बार डालने के बाद तीसरी बार वोट डाली, मीडिया में भी आया, लेकिन इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। ऊपर से नीचे से एक्सेल से लेके ऊपर तक सब मिले हुए हैं। मैंने चीफ इंजीनियर को भी कन्वे किया, मैंने कमिश्नर सेक्रेटरी का भी नोटिस पे लाया, लेकिन किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। और ये ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं। ऑनरेबल एमएलए साहब ने इतना बड़ा हाउस है, पावन पवित्र जगह है, उम्मीद यही करते थे कि सच बोलें, और अफसोस कि जहां ये बात कर रहे हैं, दूसरे दिन सुबह मेरा एक्सीलेंट चीफ इंजीनियर वहां गए, दोबारा मैक्सिमाइज कराया। कम से कम आप ये इतना तो बोल दो, कोई करा देंगे ना आप लोग, लेकिन है कि इतना तो शुक्रिया करो कि आपका वहां मैग्नेशन कितने काम आपने मुझे सुनिए, मैं ऑनरेबल मेंबर से यही करूंगा, जब अपन सच को बोले ऑफिसर का शुक्रिया तो करें, ऑफिसर वो काम करेगा। आप बिल्कुल कहेंगे करते ही बनी तो डिस्करेज होगा, कैसे काम करेगा? बस हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, बाकी सवाल है। साहब ने कहा उनको डाउनसाइज किया है। Number 2, if they speak for the quality, it is of atrocious quality. मैं इनको फोटो दे सकता हूँ, वीडियो दे सकता हूँ, जो लोकल सोशल मीडिया पे लोग हमारे को गाली गा रहे हैं कि ये किस प्रकार की है। Don't say over the quality. Today we are going to prove. You have not improved it. You will have to improve it because your engineers जो है, they are not working as per the specifications. आप एक रोड को मेरे को चेक करा दीजिए, जो स्पेसिफिकेशन में आपका पीएम पढ़ा हो या आपका ओजीपीसी पढ़ा हो या एलजीपीसी पढ़ा हो। आपके यहाँ पर क्वालिटी कंट्रोल द वेरी कॉस्ट, यू नीड टू ऑगमेंट दोस थिंग्स बिकॉज़ क्वालिटी हैज टू इंप्रूव, अदरवाइज द ब्लेम विल कम ऑन द एमएलए एंड द गवर्नमेंट। आप उनको डिफाइन मत करिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ये आपका काम नहीं है। यू विल हैव टू इम्पोर्टेंस और डीएसपी की आपने बात करी है, डीएसपी आपकी जितनी पीएमडीएसआई की रोड बड़ी है, डिस्पाइट रिपीटिंग नोटिसेस, नोबडी हैज व्हाट एक्शन यू आर गोइंग टू डू? डिस्पाइट रिपीटिंग नोटिसेस, आई हैव गॉट अ कॉपी ऑफ नोटिस, और अब उनको क्या हो गया? अब देख उसमें रेनी सीजन में यह गॉट ए बिग एक्सक्यूज कि हाजी जस्ट को डाली हो गया। कुछ हो रहा है, ये इससे कुछ ऑनरेबल नंबर ने आपको कुछ सजेशन देनी है, जवाब देने की सुनना देने बाद कुछ सुझाव आए, आप उन पर अमल करने की कोशिश करिए एज फार एज पॉसिबल। वैसे बच्चे ना आपको जवाब सब आप बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा आपने दो तीन सवाल मिनिस्टर इंचार्ज टेक्निकल was announced by the government of Japan in the year 2019 for procurement of travel to government of India applies. It is right National Agricultural Cooperative Marketing Federation Limited to provide benefit to the farmers by facilitating the timely marketing of farm goods during COVID-19 pandemic. Part B, sir. Restructured weather-based crop insurance scheme. Apple, Zapton, Mango and Litchi blocks have been notified to provide cover. The tendering process was select of insurance company out of the FL insurance company notified by Government of India to provide insurance cover these particular crops in this process. Part C, sir. The department is providing assistance for the establishment of CS storage units in the Jammu and Kashmir UT. The estimates requirements for control and cost with storage is 6 lakh metric ton. 30% of annual production food crop. Currently, Jammu and Kashmir has 2.92 lakh metric ton of capacity. Department is committed to increase the CS storage level in the next 5 years
apart from social funds and central sponsor schemes, mission for intimate development of horticulture, Jammu and Kashmir government also provided top-up subsidy community awareness. Moreover, various initiatives are undertaken by the Jammu and Kashmir UP to support this expansion, including awareness seminars are being conducted with the youth about the incentives available for establishment of schools. Another post house is related. Reason, as most sales stores are located in the Industrial Growth Center in the city of Pulwama and the industrial estate at Abila Shukran. Efforts are underway with the Industry and Commerce Department to establish sector-specific industrial estates for horticulture and post-harvest management solutions. The department has established 2 food vegetable markets in Pulwama district, namely at Kulsu Pulwama and Pachar, Rajpura Pulwama. Both the multis are functional. However, upgradation and improvement of the factories is a continuous process for which funds the tune of rupees 1.28 crore and rupees 3.68 crore respectively have been earmarked for the upgradation of these multis and the NABARD for the year 2025. Clarification, sir. क्योंकि हॉर्टिकल्चर के हवाले से सवाल नहीं और we know that is the back of the economy this year. Unfortunately, because of this blockade of highway or economic blockade of CA, for the principle of sustainability, suddenly horticulture season भी शुरू होता है, उसे बहुत टाइम लगता है. खासकर हॉर्टिकल्चर को ट्रैवल इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है. 5,000 करोड़ के आसपास नुकसान हुआ है. तो बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस में है फार्मर्स. नैफीड का आपने मेंशन किया कि 2019 और खासकर कोविड में इन्होंने कॉम्पेंसेट किया फार्मर्स को. जब नुकसान हुआ तो इन्होंने खरीदा और उसके बाद कॉम्पेंसेट किया. व्हाई इज इट दिस ईयर? बिकॉज़ वी नो द लॉसेस आर हाई. नैफीड वाला जो प्रोग्राम आपका था 2019 में पोस्ट एप्लीकेशन इस्तेमाल किया और कोविड के दौरान इस साल हुकूमत बड़ी प्रोग्राम क्यों नहीं करे सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ उसको जो स्ट्रेस में है, फाइनेंशियल स्ट्रेस में काफी ज्यादा उनको हेल्प किया जाए. That's one. Second important है KCC लोन्स का बड़ा हो रहा है. सारे एमएलए साहब यहाँ आए, काफी लोगों ने रेजोल्यूशन डाले. अगर KCC मांग होता करीब 600 करोड़ का टोटल पूरी स्टेट में आता है. अगर गवर्नमेंट भी फैसला करे इस पर इट अफोर्डेबल और चीफ मिनिस्टर भी यहाँ है तो सारे फार्मर्स को कम से कम आप मदद कर सकते हैं. इस साल अगर KCC को आप माफ करें कम से कम. ये सही बात है कि रोड की हालत खराब थी और रोड बंद होने से हमारे फार्मर्स ने बात की. और एक लिंक है यहाँ पर, जहाँ अगर 100 करोड़ नुकसान होता है तो हजारों करोड़ के बारे में कहा जाता है. ऐसा नहीं है सर. आपको बताओ 23 लाख मीट्रिक टन हमारी कैपेसिटी हमारी प्रोडक्शन होती है साल में. और जब इस सीजन के पहले का ये जब बंद हुआ था, रास्ता बंद हुआ था, उस वक्त हमारी जो बाहर की मंडियों में हमने जो ग्रीन फूड भेजा था वो करीब उस वक्त था 2 लाख मीट्रिक टन. उसमें जो स्प्रेड हुआ वो कम से कम 22,000 मीट्रिक टन जो स्प्रेड हुआ. और अगर आपको याद होगा पहले जब हफ्ते में जब हमारा वो पूछे तो सर हमारा जो इश्यूज है मेरे ख्याल में जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा इश्यूज हमारे हॉर्टिकल्चर. हमारा हॉर्टिकल्चर जम्मू कश्मीर को 600 करोड़ 400 करोड़ 1,000 करोड़ मेरे ख्याल में ये बड़ी बात नहीं है. 80% लोगों को अगर कोई रिलीफ मिलेगा इसके लिए हम ध्यान नहीं देते. मैं मिनिस्टर साहब से गुजारिश करूंगा कि जो इंश्योरेंस क्रॉप इंश्योरेंस है ये शोपियां में इस वक्त जो स्टोर के लिए जो कैपेसिटी है जो प्लाट बंदी की है जहाँ पर पैसा खर्च होता है बना सकते हैं. पिछले 1 साल से पेंडिंग है, सब कुछ बना है लेकिन क्या सवालात हैं कुछ ये सरकार पर इल्जामात नहीं. और इस वजह से आप गैर जरूरी अपने आप को स्ट्रेस में डाले जवाब देने के लिए और जस्टिफाई कर दे लाइसेंस कम है. डिपार्टमेंट आपको क्या कहे लेकिन हकीकत ये है एक ऊंचा आया है हमारी मैशियत पर, फ्रूट ग्रोवर्स के इकोनॉमी पर.
कहीं पर भी आप जाइए, इस इलाके आप जाइए। माफी चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ। मैं सिर्फ ये गुजारिश करना चाहूँ कि इस वक्त एक पैच क्योंकि वो कनेक्शन की लेडी है, वहाँ लगभग 20-25 गाँव रहती है, जो लड़कों के कमरा है, वहाँ एक पैच लाश में इजराइल की गई है। इस वक्त जो वहाँ काम हो रहा है दवाई के जरिए, उनके पास ऑलरेडी एक घर में 4 लाइसेंस है, 5 लाइसेंस है, उनको लाइसेंस मिल गई है। वहाँ पर बहुत सारी कोल्ड स्टोरेज हो है, सैचुरेशन आई। अब हम एक पॉलिसी ला रहे हैं जिसमें हम लोग अदर सैचुरेशन आई है सीएस स्टोर्स में। वाइज नॉर्थ कश्मीर में जो मेजर ग्रो करता है या हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसर है उसमें कम है। इंडस्ट्रियल एस्टेट हमारे क्वार्टर में 2 जगह हो गए हैं और उन्होंने इंडस्ट्रियल एस्टेट दिया है इसके लिए, क्योंकि वो सारा एरिया हॉर्टिकल्चर इसके प्रोड्यूस करता है एप्पल्स। मेरी गुजारिश ये रहेगी कि वो 2 इंडस्ट्रियल एस्टेट्स जो है वो एग्रो इंडस्ट्रीज के लिए रिजर्व किए जाए, ताकि वहां जो बैलेंस है वो हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी और स्टोरेज और मार्केटिंग। इट्स अ सजेशन ऑन थैंक यू वेरी मच सर। श्यामलाल शर्मा जी, श्यामलाल शर्मा, अच्छा वो नहीं है, पवन गुप्ता जी उसकी तरफ से सवाल पूछेंगे। एक नंबर 1.9 Now, Minister in charge, Sir, issue number 159, the government has not formulated any fresh rehabilitation policy for the recent flood victims. However, a proposal regarding the allotment of state land measuring 5 marga in favor of each landless family affected due to natural calamities, that is floods, landslide, cloudburst, earthquakes on lease basis for residential purposes only is under consideration. Yes. My first question is, why that policy has not been formulated today? It is over, but how much to go? These cloudbursts have taken place, these landslides have taken place, the people are living in the open in my area. Sir, I will tell you, entire Jammu division has been affected because of this case. Sir, no policy has been formulated. Is there any government existing? आपको 2.5 महीने से कोई पॉलिसी नहीं बनी, लोग बाहर आ रहे हैं, आपने क्या दिया उनको? एक 12/16 का तिरपाल दिया, 10 आदमी में से 2 आदमी को दिए। अब सर मेरा क्वेश्चन ये है कि उन लोगों को जिनके दुकान और जमीन पूरी लैंडस्लाइड आ गई, इनके पास रिपोर्ट है, उधमपुर के अंदर में 9,000 houses have been damaged and they have got no place to live. उनके साथ में जब वायरस है तब का इजराइल साथ है। ये कहते हैं कि 5 नहीं सर, 5 महीने सर कब देंगे जब वो मर जाएंगे? सर ऐसा है कि हमने बार कहा कि आप उनको लैंड को सब्स्टिट्यूट कीजिए, उनकी लैंड को टेबल रख के म्यूटेशन कीजिए, उसको स्केल लैंड में कन्वर्ट कीजिए, उनको स्केल लैंड दीजिए ताकि वो लोगों की रिहेबिलिटेशन हो। अब तक इन्होंने कोई पॉलिसी भाई, अब हम लोगों को क्या जवाब देंगे? नंबर 2, सर हमने सीएम साहब से मैंने एक रिक्वेस्ट की थी कि वो हमारे सिटी फंड को रिलैक्स करें, जस्ट लोगों को इसके साथ वो छोड़ दीजिए, जिस पोटेंशियल हम उनको 1,30,000 की जो प्रॉपर्टी दे रहे हैं, मुझे पता हो उसको 8,000 दे रहे हैं, सर वो कैसे करेंगे? सर इसके लिए हमारा एसडीआरएफ में नहीं माल करना, हमारा एनडीआरएफ में माल करता है। आपने एनडीआरएफ को क्यों डिक्लेयर किया है? आपके नाम पहले आपके फंड्स को कंज्यूम करते, then you would have gone for settle, then you should have asked for the NDRF fund. But this has not taken place because I think no damage has taken place in the Jammu Valley, but the damage has taken place only in the Jammu Valley. That's why we have been ignored. That's why we have been ignored. पहले आपका सुझाव आ गया, आपका सजेशन है, लोगों को कैसे करेंगे? सर तकवाल के अंदर
साहब कहिए, मैं इन्वाइट करता हूँ सीएम साहब को विजिट करें। मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए और देखें पूरे 5 रह जाते 80 मोर देन कोई बात नहीं, बच्चे आप देखिए, आप तशरीफ करें, आप तशरीफ बच्चे करने की बात सुने पहले, आप सुना ना मेरी बात, आप मेरी बात सुनो, तशरीफ रखो ना, बात सुनना पड़ेगी आप तशरीफ रखो तशरीफ, मैं नहीं सुनूंगा आपकी, आई डोंट अलाउ यू, टेक योर सीट प्लीज, टेक योर सीट। सवाल सिंपल सा है, क्या गवर्नमेंट ने कोई नई रिहैबिलिटेशन पॉलिसी बनाई है, नहीं बनाई? जवाब मिनिस्टर साहब ने सीधा कहा कि अभी तक हमने कोई रिहैबिलिटेशन पॉलिसी बनाई नहीं है। अलबत्ता मैं क्या कह रहा हूँ, आपको सब्र क्यों नहीं? हम सभी कदे बोल रहे हैं। अलबत्ता हमने फैसला किया है जो लैंडलेस हैं, जो को नुकसान हुआ है, उनको 5 मरले जमीन सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। ये जवाब है। अब इसमें बहस शुरू हो गई। देखो ना, मैं आपको बताना चाहता हूँ इस सब्जेक्ट पर बहुत से सवालात आए हैं हाउस में और आएंगे, सवालात आएंगे। मैं आपको भरपूर मौका दे दूंगा सवाल पूछने के लिए, लेकिन आप देखो ना, अभी हम 7वें नंबर पर हैं और भी सवालात यहाँ पर है। अच्छा तशरीफ रखिए, सुनिए जवाब। जहां तक ऑनरेबल मेंबर ने सवाल पूछा, सवाल का सही जवाब मेरे तरफ से ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबा ने दिया। बात ये नहीं है कि पॉलिसी नहीं है, सवाल ये पूछा गया कि क्या कोई फ्रेश पॉलिसी। हम फ्रेश पॉलिसी ला नहीं रहे हैं क्योंकि फ्रेश पॉलिसी की जरूरत नहीं। जहां तक लैंडलेस लोगों को जमीन मकान बनाने के लिए देने का इरादा है, उसके लिए हमने पहले ऐलान किया है, कागजी कार्रवाई हो रही है। उसका भी जवाब दिया गया है कि जहां अवेलेबल होगा वहां पे PMAY पैटर्न पे 5 मरला जमीन जो है लीज बेसिस पे रेजिडेंशियल के लिए जहां जमीन होगी वहां हम दे देंगे। ये 2 चीजें। अब मेरे ऑनरेबल मेंबर ने यहाँ शायद उनकी अपनी आदत है तो अपनी आदतों को हमारे ऊपर डालने की कोशिश कर रहे हैं। जनाब, हम इलाकाई जो है सियासत करके रिलीफ इस पैटर्न पे मांगेंगे कि नुकसान अगर जम्मू में ज्यादा हुआ हम मांगेंगे नहीं, ज्यादा होगा तो हम रिलीफ मांगेंगे। तब हमारी ये सियासत है, ना हमारा ये कभी इरादा था ना कभी इरादा। आप देखिए ना, मैंने चुपचाप आपकी बात सुनी और आप मेरी बात सुनिए ना। या तो आपका कोई डायरेक्ट लाइन कहीं होगा जो आपको गलत इंफॉर्मेशन फीड कर रहे हैं, या तो फिर आपके पास पूरी इतला है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपनी टीम भेजी, हमारे लोगों ने उनके साथ मिलकर डैमेज का असेसमेंट किया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से होम मिनिस्टर साहब आए, उन्होंने जम्मू में 1-2 इलाकों का दौरा किया और गए। एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब आए, मेरे साथी उनके साथ में जम्मू आए, उन्होंने खेत में जाके थोड़ा सा फसल का नुकसान देखा, एक मीटिंग की और उसके बाद वापस गए। हमने यहाँ बैठ के फिर पूरी तरह से डैमेज का असेसमेंट किया। डैमेज असेसमेंट में ये देखने को मिला कि वाकई इस बार 2014 के मुकाबले जम्मू के साइड में नुकसान ज्यादा हुआ है कश्मीर के बरक्स, लेकिन हमने इसमें बराबरी लाने की कोशिश नहीं की। हालांकि एक तरफ से मुझे किसी ने ये कहा, जनाब अगर हम ये प्रपोजल भेजेंगे इसका शायद उल्टा ये नतीजा निकलेगा, लोग कहेंगे कश्मीर में नुकसान हुआ नहीं। मैंने कहा जहां ज्यादा नुकसान हुआ है वहां पे रिलीफ ज्यादा बनता ही बनता है। वो पैकेज जो हमने मांगा है वो तैयार है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सबमिट किया जा रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से उसकी मंजूरी आ जाती है, वो पैसा हम लोगों को बांटना शुरू करेंगे। इसमें कोई सियासत नहीं होगी, इसमें कोई मजहब नहीं देखा जाएगा, कोई इलाका नहीं देखा जाएगा। नुकसान हुआ है तो नुकसान का मुआवजा मिलना चाहिए, बस। नहीं, इस पर कुछ नहीं है।
Question number is one. Question number is one. No question now. No question. After question number, there is no supplementary. I will not allow any supplementary now because the question number is over. आगे आएंगे फिर सवाल आएंगे. फिर सवाल आएंगे. हाँ बोलिए बोलिए क्या बोलिए. स्पीकर से मैं हाउस का क्या एक बड़े अहम मसले की तरफ मजबूत करना चाहता हूँ कि हमारा एक पुलिस एमएलए गोरा बहराज मलिक साहब गैर आईनी गैर कानूनी तौर पे पीएसए की इस वक्त सजा भुगत रहा है जेल के पीछे. मेरी ये गुजारिश है ये हाउस जो है 1 घंटे के लिए उसके लिए डिबेट के लिए मुकर्रर करे ताकि आज महराज मलिक के ऊपर गलत इल्जाम लगा के उसको सलाखों के पीछे धकेल दिया गया. उसकी आवाज बंद करने के लिए कल गैर जमहूरी तरीके से दूसरे किसी एमएलए को सलाखों के पीछे धकेल दिया जाएगा. ये बड़ी रॉन्ग प्रेसिडेंस है. इसको रोकने की जरूरत है और ये साउथ को उसको कंडेम करना चाहिए. और हम ये समझ सकते हैं कि फौरी तौर पर उसका जो पीएसए जो उसको रिमूव किया जाए और उसका जल्द से जल्द वापस इस असेंबली में आने की बात. आपकी बात आ गई. दोनों का आपको भी दोनों को टाइम दिया दूंगा आपको. इसको बोलने दो. पहले क्या बात है. आफ्टर दैट वी विल आल्सो मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है सर. मैं हाउस के जरिए एक इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का मेरे साथ एक मिनट बोलिए. मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का सर रंजीत सिंह नामक शख्स जो है वो नाइजर में वहां पर काम करता था किसी कंपनी के साथ प्राइवेट कंपनी में और वहां पर उसको किडनैप कर दिया गया था वहां के लोकल टेररिस्ट ग्रुप में. अभी तक जो है उसकी फैमिली भी परेशान है जनाब. तुम्हें ऑनरेबल सीएम साहब के द्वारा से ये मैटर जो है वो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के पास से टेकअप करे ताकि उसकी जल्द से जल्द वापसी हो आ सके और सही सलामत भी हो सके सर. ये मेरी सीरीज. हाँ बोलिए बोलिए. एक मिनट मेरा फैसला करो. मेरा स्मॉल जी सर मेरा भाई का ग्राफिक प्रदर्शन मेरा छोटा सा सजेशन है कि आप एक बहुत ही लर्नर आदमी आप हम रोज बरोज आपसे सीखते हैं और यहाँ भी जो लोग हैं 3 टर्म 4 टर्म 5 टर्म पर पहले दिन एक विषय को लेकर असेंबली में एक हवाले से एक प्रेस लिख दिया गया कि असेंबली में विषय पे काम किया जाए. आज फिर मेरे एक लंदन आदमी को विषय पे काम किया गया. किसी आदमी पे पीएसए इन्वोक करना दिस इज द सब्जेक्ट ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट मैनेजर. वेरी सिंपल. इसमें सरकार का किसी पॉलिटिकल पार्टी है उसके पीएसए के ऑर्डर को मैं समीक्षा सुनना नीचे आने की जरूरत नहीं है. आप बैठो अपनी जगह पर बैठो. मैं कहता हूँ अपनी जगह पर बैठो. बैठिए अपनी जगह पर. रियल में कोई नहीं आएगा. रियल में कोई नहीं आएगा. खान साहब आप तशरीफ रखिए. मेरी बात तो सुनो. मेरी बात सुनो. मेरी बात सुनो.
आपकी बात रिकॉर्ड नहीं होगी, आपकी बात रिकॉर्ड नहीं होगी। अपनी जगह पर जाइए, अपनी जगह पर आगे मेरी बात सुनने के बाद आप बात करो, मेरी बात सुनो ना पहले। तो बैठो, जब मैं बैठो अपनी जगह बैठो, आप बैठो अपनी जगह। पूरे साहब आप तशरीफ बैठिए, सुने ना आप मेरी बात भी सुनो, आप बैठो अपनी जगह, आप भी बैठो अपनी जगह। आज अगर कैमरा देखिए एक आप तशरीफ देखिए, सुनिए मेरी बात। आप क्या करते हो, देखो हमें इस हाउस का डेकोरम रखना है। एक कानून नंबर जो जम्मू शहर है उसके अंदर पिछले फ्लड के दौरान जो भगवती नगर वाला पुल है मेरा उससे भगवती नगर वाला वो डैमेज हो चुका है, जिसके कारण कितना बुरा हाल है हमारा ट्रैफिक का। आगे भी दरबार भी जाएगा और भी बुरा हाल होगा। वो कब तक क्या चलाएंगे, भी जल्दी क्या चाहिए। मैं इस बारे में ध्यान देना चाहता हूँ ऑनरेबल मिनिस्टर का, नहीं तो वहाँ पे बड़ी हुआ इंक्वायरी बनी हुई है। उधर से आप खान साहब। सर एक दो बातें कुछ कहना चाहूंगा सर। एक तो मेरे साथी ने यहाँ जो बोला कि डीसी की मर्जी के मुताबिक ये स्टेट चलेगी, डीसी जब चाहेगा किसी को भी आप आपकी बात हमने सुनी तो आप क्यों नहीं सुनेंगे। अगर महराज मालिक साहब जो इस वक्त हैं हमारे साथी है, उसने कोई ऐसा मिलिटेंसी का काम किया होता, कोई एंटी नेशनल एक्टिविटी किया होता, तो कोई भी आज साउथ का सपोर्ट नहीं करता, वरना हम करते, हम हमेशा इसके खिलाफ हैं। लेकिन ये कहना कि डीसी को पावर दिए गए हैं, वो किसी को भी पीएसए का अंदर कर देगा और जब मर्जी है वो कल आपको करेगा, परसों उसको करेगा, वो इजाजत नहीं दी जाएगी। नंबर 2, आप कह रहे उसको डिस्कस नहीं कर सकते हैं क्योंकि कोर्ट ऑफ लॉ में सुनिए नो कोर्ट ऑफ लॉ का मतलब नहीं हो गया, कोर्ट ऑफ लॉ का मतलब नहीं हो गया क्योंकि अगर किसी हाउस में कोई बात करना चाहे वो कोर्ट में पेंडिंग केस हो, वी कैन टॉक, वी कैन डिस्कस हियर। ये सबसे सुप्रीम है, इट इज सुप्रीम टू कोर्ट। कोर्ट वही ला जो यहाँ पर आके उस पर इंटरप्रेट करता है। आपका ये कहना कोर्ट में कोई चीज है हम डिस्कस नहीं कर सकते, तो हमारा मुतालबा ये है सर, हमारा मुतालबा ये कि इस पे एक कमेटी बिठानी जाए और इस पे इंटेक्ट देखा जाए कि महराज मालिक का तो बनता था कि एफबीएसएल लगाना या नहीं। डीसी इज नॉट फाइनल अथॉरिटी कि वो जिसको चाहे कर करते, जिसको चाहे बात करते। क्या बोलते हैं आप? मेहरबानी करके बैठिए आप। नोटिस दिया था रिजर्वेशन के बारे में। जी मैं फिर कहना चाहता हूँ रिजर्वेशन प्लीज इसको डोंट ब्रश इट अंडर द कार्पेट। देखिए अंडर द कार्पेट नहीं रखूंगा मैं, तशरीफ रखिए आप। आपका एडजॉर्नमेंट मोशन मैंने रिजेक्ट किया है, इसलिए रिजेक्ट किया। आप सुन लीजिए मेरी बात। अगर आप रूल 38 पढ़ेंगे, 58 रूल 58 का सबरूल 3 उसमें लिखा है द मोशन शुड बी ऑफ रीसेंट ऑकरेंस ऑफ एनी मैटर व्हिच इज ऑफ रीसेंट ऑकरेंस। अच्छा ये मामला जो है इट इज नॉट मैटर ऑफ रीसेंट ऑकरेंस, ये आपने पिछले बजट सेशन में भी उठाया था। इस पर सरकार ने एक कमेटी भी बनाई है जो उस पर बैठी हुई है, रिपोर्ट आने वाली है, बहुत ज्यादा दुनिया नहीं पाया। एक वजह ये है कि मैंने ये किया, दूसरा ये है यही रूल 58 सब रूल 7 उसमें लिखा है कि इट शुड नॉट बी पेंडिंग इन कोर्ट ऑफ लॉ competent to hear the case in any court of the country। ये मामला चूंकि सब जुडिस है, ये मतलब ये मामला चूंकि सब जुडिस है, इट इज नॉट अ मैटर ऑफ रीसेंट ऑकरेंस, इसलिए मैं इसको रिजेक्ट करता हूँ, इसको मैं अलग नहीं करता। अगर उसका इलाज नहीं हुआ युगान से दूसरा सर एक और बात, अब तो आपने रिजेक्ट कर दिया रिजर्वेशन का। पीएसए
Number one against Mehraj Malik साहब is totally unjustified. और and what else is unjustified? ये काला कानून है जो सबने यहाँ इस्तेमाल किया और इस मेहराज मलिक साहब के खिलाफ कुछ पार्टियों ने जो परसों से इल्जामात लगाए हैं, they should also come up and apologize. Because I have seen the social media, वो जेल में हैं. सज्जाद साहब देखिए ना, हमें रूल्स का काम करना चाहिए। रूल्स के मुताबिक ये हाउस रूल्स के मुताबिक चलता है। और मुझे तो लगती है देखिए ना मैं पढ़ूंगा आपको रूल 58 सब रूल 7। The motion shall not deal with any matter which is under adjudication by a court of law having jurisdiction in any part of India. इसका ये अंदर अगर ये कोर्ट में है, मैं इसको एज एडजॉर्नमेंट मोशन एडमिट नहीं कर सकता हूँ। दूसरी बात है कि it should be the matter should be of recent occurrence. Recent occurrence भी नहीं है, पिछले साल से इस पर डिबेट चल रही है, कोर्ट का मामला वो है, इसलिए दो वजूहात की बिना पर मैं इसको डिसॉल्व करता हूँ। किस चीज पर हो गया? हाँ बोलिए क्या इम्पोर्टेंट बोलिए सवाल साहब। With your permission, sir, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि इसी वक्त पहले वक्त में 0 आवर्स की हुआ करता था, ये पहले 0 आवर आपने मौका दिया सब एमएलए को अपने इलाके की बात करने का, जो इम्पोर्टेंट उसके बाद मौका दिया। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सर। ऑनरेबल चीफ साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं। पिछली दफा जो बजट में सेशन हुआ उसमें डेली बेसिस की बात की गई। जो डेली बेसिस हमारे बीएससी विभाग में काफी देर से वो स्ट्राइक पे है और काम बंद है। सप्लाईज टोटल शटर। उसके मुताबिक ये फैसला किया गया कि हम विदिन एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई है, हम विदिन 6 मंथ्स इसकी रिपोर्ट देंगे और इनको एडवाइस करेंगे। अभी तक उसका कुछ नहीं है। आपको कब कमेटी बने, उसमें कब रिपोर्ट पेश करनी है, जो बड़ी अफसोस की बात है। इस समय आप धीरे से रिटेट कर रहे हैं, उसका फैसला जो है कमेटी जहाँ पे सरकार के काबीना के मंत्री बैठे जिसका ये फैसला देंगे। सलाहकार साहब, इस सब्जेक्ट पर बहुत से क्वेश्चन पूछे गए हैं आंदोलन की तरफ से। आने वाले दिनों में वो क्वेश्चन हाउस के सामने आएंगे, उसका सरकार जवाब देगी। जहाँ तक 0 का ताल्लुक है, 0 में जो मासे उठाए जाते हैं गवर्नमेंट पापर नहीं बात सुनो, आप क्यों खड़े हो जाते तो 0 आवर में सरकार पाबंद नहीं होती है। जवाब देने में आप जानते हैं, मुझे आपको सुनना नहीं बात, लेकिन क्वेश्चन जब आएंगे सरकार से हम जवाब दे देंगे, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। सर मैंने इस पे सवाल भी दिया था, बदकिस्मती से की कहीं के कारण सवाल उठ नहीं पाया। क्रिटिकल इशू सोमवार फाइंडिंग फॉर वो एमएलए साहिबान यहाँ ऑनरेबल एमएलए सोनामाई के और गुलेज के बीच से कंसर्न है। That is a district road, that is a defense road. हाउस में आने वाला है, आप क्यों 0 वोट कर रहे हैं? नहीं Question is with me. I know that. देखिए ना, अगर आप सुनेंगे, आप मेहरबानी करके अपने शिप रखो। मैं पहले 0 की बात करूंगा, मैं बताऊंगा आपको कैसे 0 में बताऊंगा, मैं सुनूंगा, मैं आपका सवाल भी सुनूंगा, सबकी बात सुनूंगा। देखिए सवाल था मेरा हाई स्टेटस था। इशू मेरा यहाँ है
जो हम स्टेट लेवल पे, यूटी लेवल पे काम करते हैं, रोड्स की प्रमोशन, अपग्रेडेशन, मैकेनाइजेशन, वाइडनिंग के लिए, उस पे वो भी नहीं हो रहा है, बिकॉज क्लोजर रिपोर्ट्स आर नॉट क्लियर। 1, 2 कोर्ट इंटरवेंशन है, स्पीडी डिस्पोजल उसका है नहीं, जिस वजह से 4 साल से 2 ब्रिजेस 6.5 करोड़ के 3 बार टेंडर हो गए, नहीं हो पा रहा है। 2 ब्रिजेस नहीं है, वाइडनिंग नहीं हो रही है, कहाँ जाएगा? ऑनरेबल स्पीकर सर, बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है जो मैं रेज करना चाह रहा था। मेरी कांस्टिट्यूंसी डोडा वेस्ट में काशीगढ़ का एक इलाका है जहाँ गुड़धर पंचायत पड़ती है, जिसमें पूरा गांव जो लैंड वहां पे शिफ्ट हो रही है, उसके कारण 30 फैमिली जिनके घर पूरे डैमेज हुए हैं। और जो एक रोड वहां से काशीगढ़ से जो राजगढ़ हमारे रामबन के मेरे साथ यहाँ पे ध्यान में होगा, वो रोड डिस्कनेक्ट हो गई है और 30 फैमिली जो है वो बेघर आज हो गई है। मेरी सरकार से निवेदन होगी कि सरकार के ध्यान में ये बात है या नहीं है, मैं लाना चाहूंगा इमीडिएट जो ये बात कर रहे थे कि 5 मरला हम वो जमीन दे रहे हैं अंडर कंस्ट्रक्शन, उनके हाउस डैमेज हो गए हैं, उनको अभी शिफ्ट किया है कुछ फैमिलीज को, जिनको वहां पे पंचायत घर और स्कूल में एक कमरे में वो परिवार इस वक्त रह रहे हैं। मेरी सरकार से निवेदन होगी आप डायरेक्शन इनको दें, इमीडिएट वहां पे उनको रिलीफ और उनको वहां मकान बनाने के लिए जो फंड सरकार होंगे वो मुहैया करवाए जाए। इसके बाद कोई बात नहीं, आप बैठे में ऑनरेबल स्पीकर सर, पिछले बजट सेशन में हमने यहीं से कहा, आइलैंड ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर की, चीफ मिनिस्टर साहब ने एक बड़ा रेवोल्यूशनरी स्टेप लिया है, प्री-बजटरी कंसल्टेशन सारे एमएलए से पूछा कि आप अपने अपने काम करो, और हमने सबने रेज कर पता कि टीसीएम सब है 30-35 करोड़ रुपए के काम अपने मांगे, और हमने सब ने देखा एक नई रिवायत शुरू की है चीफ मिनिस्टर साहब ने, बस उसके लिए रिजल्ट क्या हुआ। मेरी कॉन्फ्रेंस में डीसीसीएल का बैठ गया, मैंने बड़े सारे काम किए, नॉट इवन सिंगल वर्क एक भी काम नहीं रखा गया। आई वॉश, दिस इज वेरी सीरियस कंसर्न। एक हाउस में आप कहते हो और फिर प्लान मांगते हो, डिमांड हम रखते हैं और उसके बाद नो रिजल्ट, दिस इज वेरी सीरियस। मतलब एक एमएलए की कोई करने वाली बात है, ये क्या आपने 30 करोड़ में 1 साल में देना, 3 साल में देना, 2 साल में देना है, बाकी जो बेस मैटर आना चाहिए। सीएम साहब मेरे सारे काम की तो एक भी काम नहीं, नॉट करना चाहिए। मैंने से कैसा बहुत बहुत शुक्रिया सर। मेरी गुजारिश है सरकार से, आज यहाँ पे हॉर्टिकल्चर पे सवाल भी आया था और काफी लोगों ने अपना कंसर्न दिखाया। हाल ही में जो बारिशों के बाद तो तकरीबन जो प्रिलिमिनरी असेसमेंट है 800 से 900 करोड़ के आसपास नुकसान हुआ। मेरी सरकार से गुजारिश है, क्या जैसे यहाँ बाकी इमरान ने भी रिक्वेस्ट की मार्केट इंटरवेंशन स्कीम लागू करने के बारे में एक गुजारिश करूंगा। मैं भी कहूंगा कि अगर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में ये क्योंकि मैंने कहीं बताया कि साहब फंड्स की कहीं पे इन्होंने जिक्र किया, अगर पब्लिक पार्टनरशिप में भी ये स्टोर बनाने की कहीं पे गुंजाइश निकलती है, क्योंकि हमारे जो सीए स्टोर की कमी बहुत ज्यादा है। 22 लाख मीट्रिक टन के आसपास हमारा प्रोड्यूस निकलता है एनुअली और 3 लाख मीट्रिक टन के आसपास हमारी कैपेसिटी है। और साथ ही साथ सबसे बड़ा कंसर्न एक इंटरनेशनल टर्मिनल रूट मार्केट जबरी हुआ, नॉमेनक्लेचर सजेस्ट करता है इंटरनेशनल टर्मिनल रूट एंड वेजिटेबल मार्केट जबरी हुआ एक फ्यूचर रोल प्ले कर सकता है। जिस वक्त इसका डीपीआर डिजाइन किया गया था, ये कहा गया था कि साउथ एशिया में अपनी मिल्कियत का ये मार्केट हो, लेकिन पिछले 10 सालों में क्लोज हुआ। मेरी गुजारिश है सरकार से कि वहां शॉप बनने हैं, सीए स्टोर बनना है, डीलर बनने हैं,
कई बार मैंने मुल्किका हुकाम के पास जाके दुहाई भी लगाई, लेकिन 1 साल तकरीबन हो चुका है, उस पर अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो मेरी ये गुजारिश होगी कि उसको वाइबल बनाने के लिए इक़दाम उठाए जाए, और साथ ही साथ जैसा कि इस साल का हमारा बहुत ही बुरा तजुर्बा है कि थोड़ी सी बारिश हुई, मे बी ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, मे बी ड्यू टू अनसीजनल रेनफॉल, एक्सेसिव रेनफॉल, जितना भी फ्लाइट हुआ हमारा ये नेशनल हाईवे वो बुरी तरह से मुतासर हुआ, उसके लिए इक़दाम रखे जाए, पहले इक़दाम रखे जाए। Speaker sir, unfortunate incident जो लास्ट ईयर पहलगाम में हुआ, बहुत सारी टूरिस्ट डेस्टिनेशन को क्लोज किया गया। इस साल कुछ खुले, लेकिन हमारी डिस्ट्रिक्ट में दलपत्री और तोसमादा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, यूसमरग भी है, तीनों डेस्टिनेशन अभी क्लोज है। पता नहीं चलता कि किस वजह, कहाँ पहलगाम, कहाँ तोसमादा को दलपत्री और कहाँ यूसमरग। खैर यह है कि ऑनरेबल एमएलए को भी नहीं छोड़ा गया। कुछ वीआईपी जो बाहर से आते हैं, हमें उनका एहतराम और इज्जत है, आए, उनको छोड़ा जाता है। जिन्होंने क्या है उनको नहीं छोड़ा जाता। मेरी रिक्वेस्ट है यूसमरग, तोसमादा, दलपत्री और दल इमीडिएटली इनको खोला जाए। जैसे कि मैं आपको नोटिस में लाना चाहूंगी कि यहाँ पर बहुत सी बातें हुई है जो ऑनरेबल हमारे मेंबर इस वक्त पीएसए के जो बता रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ मैं गुजारिश आपसे कर रही हूँ आपकी वसातत से चीफ मिनिस्टर साहब कि जितने भी हमारे जो नौजवान बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, बड़े हैं, उनकी उम्र 16 से स्टार्ट हो रही है और वो भी 34-35 साल के बच्चे, उन्होंने जो 2018 से शुरू हुआ है ये किस्सा, कोई लड़का ऑटो में कहीं जा रहा था, उसको पुलिस ने बेतहाशा रीजन उसको गिरफ्तार करके बाहर की जेलों में रखा गया। मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में तकरीबन 12 लड़के ऐसे हैं जो कोई खेल रहा था, कोई क्रिकेट खेल रहा था, आ रहा था, तो उनको विदाउट एनी रीजन गिरफ्तार करके बाहर की जेलों में रखा गया है। मैं आपकी वसातत से चीफ मिनिस्टर साहब से गुजारिश करती हूँ कि वो एक कमेटी बनाए, उस कमेटी में वो रखे कुछ अगर जजेस, रिटायर्ड जजेस होंगे और पुलिस ऑफिसर होंगे, वो देखें कि उन्होंने अपने जो उनका जो उनको पावर मिला है एलजी साहब के इसमें सरपरस्ती में, उन्होंने कैसे वो बेतहाशा उसका इस्तेमाल किया है, क्योंकि उनकी भी ड्यूटी बनती है टुवर्ड्स द कॉमन पीपल, वो उनको सिक्योरिटी दे, उनको प्रोटेक्शन दे, और एलजी साहब की भी एक उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो यहाँ के लोगों को प्रोटेक्शन दे, उनको जो उनको सिक्योरिटी दे। इस तरह से बात नहीं बनेगी कि यहाँ के एसपी साहब या पुलिस वाले कहेंगे कि हम इस वक्त की सरकार के मातहत नहीं है, इसलिए हम जो चाहे कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टुवर्ड्स द पीपल, टुवर्ड्स द कॉमन पीपल। और सीएम साहब से गुजारिश करती हूँ कि वो एक कमेटी बनाए और उसका रिपोर्ट क्या आएगा ताकि वो हम साहब भी प्राइम मिनिस्टर से आदमी के जहां पर खुद का इजहार करता हूँ, सारे हाउस को करना चाहिए। हमारे साथी रहे, वो सियासत में सब आ गए, काफी लोग साथी को भी भारत को भी मुबारक, एक से डिपोटी मिल गई, लेकिन शाखा की सुई होता है। हाउस भी गवाह है और वो भी गवाह है। 3 नामों को इनको वोट बताया, मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, जहाँ इन्होंने कहा मैंने वहां ही वोट दिया,
सीएम साहब ने कंट्रीब्यूशन बहरहाल अल्लाह शाह हम अपने सवाल ये मैंने ऐसे ही जिम्मन बात की, इससे भी एक कभी बात चलेगी। मैंने एक मसला यहाँ पे अपने जाहिर साहब ने मिनिस्टर हॉर्टिकल्चर ने उठाया कोर्स जो सैचुरेशन की बात बताई, ट्रायल को हर मामले में इग्नोर किया जाता है। जमीन भी हमारे पास एक हॉर्टिकल्चर मंडी भी बन रही, शायद इसका ये आज ही ऐलान करेंगे तो हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि मसला क्या है, मसला बताइए। मसला हमारे पास भी फ्रूट जाया होता है, उसके लिए एक मंडी चाहिए हमें, एक कोल्ड स्टोर चाहिए। दूसरा जनाब यही है कि ये पब्लिक सेफ्टी एक्ट उन्होंने कहा क्योंकि ये आपके डोमेन में नहीं, ये सेंटर का है। हम गुजारिश करेंगे, अपने भाई भी करेंगे कि जो PSC मेहरा साहब के खिलाफ लग गया उसको वापस किया जाए। वन बाय वन इरशाद रसूल खान साहब, इरशाद साहब बोले। सर, ऑनरेबल स्पीकर सर, आपको भी टाइम मिलेगा। ऑनरेबल स्पीकर सर, मैं हाउस का ध्यान आज के एक सोशल मीडिया न्यूज फ्लैश हुई है अभी हाउस के क्वेश्चन को लेके, इसमें जो रिप्लाई दिया गया है, जो मैंने सवाल पूछा था उसको लेके नॉन सीरियसनेस दिखाई गई है और इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन दी गई। जो करेक्ट जो ऑर्डर कंसर्न था वो मेरे पास है और मिसकोट किया गया है, रिप्रेजेंट हाउस को मिस इन्फॉर्म किया गया है। और मैं क्लियर से चाहता हूँ जिन लोगों ने भी जो इस रिप्लाई के लिए रिस्पॉन्सिबल है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। एक नॉन सीरियस इशू, एक नॉन सीरियस रिप्लाई दिया गया है जिसका न्यूज फ्लैश की गई सोशल मीडिया पे रिगार्डिंग SRTC एक्ट इन सोपोर। इसके बारे में सवाल था, ये 180 SRTC एक्ट इन सोपोर। चले और इसको लेके सर हाउस इस तरह से हाउस को गलत इंफॉर्मेशन दी जा रही है। लास्ट मेरा इस आपका पॉइंट आ गया, आप लिख के मुझे भेज दीजिए ये सही जवाब क्या था और उन्होंने क्या जवाब दे दिया। चौधरी साहब अकरम की सर मैं अपनी कंस्टिट्यूएंसी की बात करूंगा। मेरी एक रोड जो 2010 में शुरू हुई थी, गुफलियाज मड़ा रोड, सर जो हमारा मड़ा और हिल काका है उसमें बहुत सारे लोगों की जान मिलिटेंसी के अंदर चली गई। उसमें हमारी फौज की बहुत ज्यादा नुकसान हुई और सिविलियन की बहुत ज्यादा कैजुअल्टी हुई। रोड जो थी वो नवाड़ के अंदर शुरू की गई, लेकिन सर अभी तक नहीं बनी। ऑनरेबल CM साहब जब पिछले साल उन्होंने वहाँ मीटिंग ली थी, कैबिनेट की मीटिंग, डिप्टी CM साहब वहीं थे, एक कमेटी बनी थी उसकी इंक्वायरी के लिए। सर 1 साल हो गया है वो रोड बंद है और कोई कमेटी की रिपोर्ट भी नहीं आई। अब उसकी दोबारा जो है वो सैंक्शन वो भी होनी चाहिए, लेकिन कमेटी की रिपोर्ट आएगी तो तब लोगों को वहां सर 50 किलोमीटर से भी ज्यादा वो पैदल का सफर है। सर मेरा यही कंसर्न है, तो आप सर थैंक यू। सर यहाँ हाउस में पिछले सेशन में आपने JJM की कमेटी कंस्टिट्यूट की थी जो इरेगुलरिटीज को देख रही थी, लेकिन उस कमेटी की मीटिंग में मैं भी मेंबर हूं। लेकिन सर पिछले 1 साल में हम देख रहे हैं कि JJM का काम बिल्कुल ठप हो चुका है, फंडिंग ठेकेदारों को, कंट्रैक्टर्स को नहीं हो रही, जिसकी वजह से काम बिल्कुल बंद हो गए। JJM की कमेटी जो आपने कंस्टिट्यूट की थी वो इस पर्पस के लिए की थी कि क्या उस प्रोसेस में इरेगुलरिटीज हैं, लेकिन उसका मंशूर ये नहीं था कि काम ठप हो जाए। अब पिछले 1 साल से बिल्कुल काम ठप है, पानी की हाहाकार मची हुई है। खासकर मैं अगर पीर पंजाब रीजन और बिलखुसूस रजौरी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करूं तो वहां सर पेमेंट ना होने की वजह से काम ठप है, स्कीमें बंद पड़ी हुई है 1 साल से। सर मेरी आपकी विसादत से मेरी ये मिनिस्टर साहब जहां बैठे हैं, क्या रीजन है, क्यों फंडिंग नहीं हो रही है और अगर काम नहीं स्टार्ट होंगे पानी की और उसमें पानी अगर नहीं चलेगा तो पानी के बिना सर किस तरीके से लोग गुजारा करेंगे, उनके माल मवेशी वो परेशान। और दूसरा सर बाबा गुलाम शाह बादशाह हमारी वहां बहुत बड़ी ज़ैरत है सर, रजौरी पुंछ नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर की।
एक ही इश्यू आप उठा देखो तो सर एक मिनट सर वहाँ डाइनिंग हॉल को वहाँ चेयरमैन के नाम पर रखा गया सुरक्षा सर, इसकी हम मजम्मत करते हैं। वो पीर फकीरों की इजाजत है सर, वो पीर फकीरों उनमें होना चाहिए। एक चेयरमैन कल मिनिस्टर साहब उठ के जायद का नाम बदल कर अपने नाम से रख देंगे, इसकी हम मजम्मत करते हैं सर। एक मैं दे दूंगा टाइम, दुबे साहब को बोलने दो, इसे पानी बढ़ता है। स्पीकर साहब, आपके इस हाउस के मैं ये बताना चाहता हूं जनाब कि हमारा इलाका बहुत दूर दराज और पसमानदा इलाका, और आप देखेंगे, आप भी कई दफा गए हैं हमारे इलाके में। सावलाकोट से अरनास 100 कुछ किलोमीटर है, और डकीकोट, नागकोट, परानकोट से रियासी 150 किलोमीटर पड़ता है। हमें या तो माहौर जाना पड़ेगा इस एसडीएम के लिए या रियासी। मेरी इस हाउस से ये दरख्वास्त है कि पौनी में और अरनास में एक एसडीएम दोनों जगह पर रखा जाए। ये बहुत नाइंसाफी हुई है, इलाका परस्ती हुई है। जब ये यहाँ पर इस हाउस यहाँ पर ये इन्होंने तहसीलें बनाई, डिस्ट्रिक्ट बनाए, उस वक्त हमें इग्नोर किया गया। ये पौनी का जो है ये 25 पंचायतें हैं, 1 लाख कुछ हजार की आबादी है, और ऐसे ही 2 तहसीलें हमारी खाकराकोट और अरनास पड़ती हैं। ये बहुत बड़ा जुल्म है कि खाकराकोट ये वो इलाका है, यहाँ पर बड़े हादसे हुए डकीकोट, नागकोट, परानकोट में, और आज दिन तक वहां पर रोड भी नहीं जा पहुंची। हो गए। और एक बात मैं और करूंगा कि हमारा बोलिए आप बोलिए, आप तशरीफ रखिए, बोलिए। ठीक है सर, शुक्रिया। बोलिए सर, आपके बाद 3 रोड है हमारी। एक रोड है भड़गी कुनान रोड, एक है भंगराव टू शिंगरी रोड, एक सलेला टू जुगोता रोड बंद है। हजारों लोग जो है परेशान है, राशन नहीं पहुंच रहा है। कोई मरीज होता है उसको उठा के पालकी में या वो क्या कहते हैं मंजे पे उठा के उसको अस्पताल तक लेना पड़ता है। मेरी आपसे गुजारिश है कि इन 3 सड़कों को जल्दी से जल्दी खोला जाए। चलो थैंक यू सर, धन्यवाद। सर, मैं आपके माध्यम से क्या प्लीज आपके माध्यम से सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूँ। इसके बाद मेरी ये आपको भी बारी आएगी, आपकी बारी भी आएगी, कोई बात। सबसे जरूरी है सर, आपको भी टाइम मिलेगा, कोई बात। मेरी विधानसभा सर, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी रामगढ़ में रिसेंट फ्लैश फ्लड में सर एक सड़क है, मात्र 8 किलोमीटर, सिर्फ 8 किलोमीटर का रास्ता है सर। पंचायत साथी जो ब्लॉक हेडक्वार्टर से 8 किलोमीटर तक का विलेज है, लगभग 12 विलेजेस, 12 विलेजेस आर अफेक्टेड। 2 जगह पे रोड सर कंप्लीटली वॉश आउट हो चुकी है। एक ब्रिज जो है वो बैठ गया सर, लेकिन अभी तक उसका टेम्परेरी रेस्टोरेशन सा नहीं हुआ है। बच्चों को स्कूल आना, एसडीएम ऑफिस आना, तहसीलदार के पास आना, हायर सेकेंडरी स्कूल आना, कहीं भी सर आने के लिए 8 किलोमीटर का रास्ता जो है बंद होने की वजह से 25 से 30 किलोमीटर घूम जाना पड़ता है। मेरी सर आपसे रिक्वेस्ट है, सरकार से आप कहें, एक यहाँ से डायरेक्शन जाए कि अगर परमानेंट नहीं करना चाहते हैं सर, नहीं होता इससे, तो एटलीस्ट टेम्परेरी रेस्टोरेशन कर दे सर, पेड़ वर्क कर दे, ताकि गाड़ी वहां से निकले, बच्चों का स्कूल आना जाना, जो ऑफिस रोड है उनका एक बन जाए। लगभग 16,000 लोग सर अफेक्टेड है राजपुरा टू 60 टिकला रोड में। डॉक्टर सजाद साहब बोलिए। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, और ऑपरेशन सिंदूर में सबसे ज्यादा नुकसान अगर हुआ तो हमारी उड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी में हुआ। बॉर्डर इलाके सारा जो था इसका मुतासर हुआ है। मेरे वहां से 500 मकान जो है सर वो पार्शली और फुली डैमेज हुआ। लेकिन अभी तक जो सर पहली किस्त दी गई, जो पहला पैसा दिया गया सर, वो आधे ही लोगों को दिया गया है, और जिन लोगों का वाकई नुकसान हुआ है अभी तक उनका जो है सर, अभी भी कमेटी बैठी हुई है, अभी तक जो है पिछले 5 महीने से सर अभी तक उनको नहीं दिया गया, और लोगों को बड़ी परेशानी आ रही है। आगे विंटर्स आ रहा है, उनको अपने मकान कंप्लीट करने हैं क्योंकि बहुत सर्दी का मौसम है। तो मेरे सर आपके माध्यम से रेवेन्यू डिपार्टमेंट को, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से ये गुजारिश है
कि वहां पे जो है फौरी तौर पे जो है वागुजार किया जाए, जो कंपनसेशन है, ताकि लोग अपने मकानों में रह सकें। सर दूसरा मसला ये है सर कि उसी के साथ एक मसला एक दिन एक मसला सर दूसरा ये तो टाइम सब इकट्ठे नहीं बोल सकते, सबको इकट्ठे नहीं बोल सकते, एक एक करके ये सबर मत हो जाइए ना, देख सबर मत हो जाए। फारूक साहब सर मैं बड़े अदब एहतराम के साथ ये कहना चाहता हूँ सर, यहाँ काफी ऑनरेबल मेंबर्स थे जो पब्लिक सेफ्टी एक्ट के बारे में बात की। सर दरअसल एक एमएलए होता है लॉ मेकर, लॉ हर एक के लिए है, नो बडी इज हैव लॉ। लेकिन सर डीएम के पास और भी काफी कानून है जिससे वो किसी को बंद रख सकता है। आई डोंट थिंक ये सर मेरी सजेशन है कि अगर किसी ऑनरेबल मेंबर को पीएससी लगाना भी, इट शुड बी डिसाइडेड एट द हाईएस्ट लेवल, नॉट एट द लेवल ऑफ डीएम। सर मैं भी रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ 2 इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स, हम बड़ी इज्जत करते थे एमएलए को। एमएलए इज ए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, दिस इज माय हम्बल सबमिशन सर, कानून हर एक के लिए। दूसरी बात सर मैं इसी के साथ लॉ एंड ऑर्डर के साथ जोड़ना, हमारे सर काफी एरियाज बंद पड़े हैं, लोग देख रहे रोड तड़प रहे हैं टूरिस्ट के लिए। काइंडली इज माय सजेशन टू द गवर्नमेंट that they should open those areas for the tourist activity। स्पीकर साहब नजर हमारी साइड पड़ी आपकी, वहां भी पहुंचूंगा, वहां भी मैं पहुंचूंगा। क्या हम शुक्रगुजार हैं आपके, आपने एक हाउस कमेटी बनाई जे स्कीम पर, जे स्कीम पर हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में वो आगे वहां प्रूव केस कुछ 2 हो गए। हद तो ये है, ये नोट करें, ये सब हाउस का कंसर्न है, ये सारे को काम करने वो आगे वहाँ उन्होंने प्रूव किया लोगों ने कि यहाँ चोरियां हुई हैं। चलो फिर जब वो चले गए, उन्हीं 2 गांवों को पानी बंद किया गया, उनको कहा गया कि आप उसी कमेटी के पास जाए, वही पानी देंगे जिनके खिलाफ हो गया। प्यारेलाल जी चलो प्यारेलाल को बोले, यहाँ से मैं खत्म करूंगा 2-4 लोग, उसके बाद मैं नहीं भाग रहा। शुक्रिया ऑनरेबल स्पीकर साहब। सर पिछले बारिशों के दौरान मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में वार्डवन एक इलाका है मर्गी, 265 घर वहां डैमेज हो गए, और बोजो तहसील में केवा एक जगह है, 23 मकान वहां डैमेज, फुली डैमेज हो गए और 25 फैमिलियां वहां से शिफ्ट हो गई। तो जो 265 मकान थे वहां चलो एसडीआरएफ के तहत कुछ पैसा दिया गया, कुछ पीएमएवाई में अब मकान सैंक्शन आए, लेकिन जो जगह थी उनके लिए उसको साफ करने के लिए आरडीडी डिपार्टमेंट ने 32 लाख का एस्टीमेट बनाया ताकि वहां मशीनरी और टिप्पर लगाए जाए। सर अभी तक आरडीडी डिपार्टमेंट ने, जबकि वहां बर्फ पड़ेगी, वो लोग टेंटों में रह रहे हैं, लेकिन इन लोगों ने अभी तक 32 लाख रुपया उनको नहीं दिया, वहां कोई सफाई नहीं हो रही, कोई मकान नहीं बन रहे वो, क्योंकि उनको दूसरी जगह नहीं। कहा केवा में सर मैंने सीडीएफ से सिर्फ एक देवा देने के लिए 20 लाख रुपए दिया, और वहां कम से कम 1 करोड़ रुपया चाहिए अगर उस गांव को दोबारा वहां बसाना है। परसों सर एक्सीडेंट हुआ मेरे छात्रों में, एक लिंक रोड है सीधी बनाना, वहां 6 लोग नीचे आए जिनमें से 3 की टांगे काटी गई। अभी तक उस रोड को दोबारा रेस्टोर नहीं किया गया और 2 नियम तबाह हो गए हैं। इंजीनियर खुर्शीद साहब उधर भी आऊंगा। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में 3 रोड है। जो ऑनरेबल मेंबर आज बोलेंगे उनको कल टाइम नहीं मिलने वाला है, जो आज बोलेंगे। सर 3 रोडें हैं मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, एक आरएनबी की सीआरएस में चल रही है। अफसोस की बात यह है कि सर 4 किलोमीटर रोड नहीं बन रही है और 1 साल से वो बिल्कुल बंद पड़ी हुई है। 2 रोड
मेरी PMGSI में है, हमूसान टू मोमन कोट, सरकोट रतहान टू मोमन कोट और टूली टू पुवली, जिन रोडों पे 2 साल से 1.5 साल से वहां पे बिल्कुल काम बंद है। तो मेहरबानी करके मैं डिप्टी CM साहब से गुजारिश करूंगा कि इन रोडों को इन पे काम चलाया जाए, ताकि हमारा जो ये हमारे लोग पैदल चल रहे हैं 20-20 किलोमीटर, उनको ये थोड़ी सहूलत हो जाए। और जो ये उनकी कटिंग करके रखी हुई है, इतनी बरसात पीछे हुई है, हमारे मकान वहां डैमेज हो रहे हैं, कोई कंपनसेशन नहीं मिल रहा है, वहां पे लोगों की जमीन पे वो अपनी जिम्मेदारी नहीं कर सकते हैं। मेहरबानी करके 2-3 रोडे हैं, इनको नोट किया जाए और इनके काम जनाब स्पीकर साहब, पिछले सेशन में मैंने डिस्ट्रिक्ट कुपवारा के जो दूर दराज इलाकों के बारे में बात की थी, केरन और जुम्मगढ़ के बारे में। आप भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं, 6 महीने के लिए ये दोनों इलाके बंद रहते हैं बर्फबारी की वजह से। पिछले सेशन में मैंने गुजारिश की थी ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब से कि जिस तरह से कंगार के लिए टनल बन रही है, तो इन केरन और जुम्मगढ़ के लिए भी टनल बननी चाहिए। यही मसला गुरेज का भी है। तो इन्होंने डायरेक्शन उस वक्त दी थी अपने डिपार्टमेंट को कि एक प्रोजेक्ट बनाया जाए इस बारे में, और इन्होंने मेरे से एक DO भी मांगा था, जो मैंने दिया। इन्होंने बाकायदा तौर इसको रेफर किया था अपने डिपार्टमेंट के इंजीनियर सेक्रेटरी को, लेकिन अभी तक वो DPR बना नहीं। मेरी गुजारिश होगी डिप्टी चीफ साहब से भी, गवर्नमेंट से, कि ये DPR बने दोनों जुम्मगढ़ और केरन का, ताकि DPR बनने के बाद ये DPR को सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजा जा सकता है। जब तक न DPR बनेगा तब तक इन दोनों टाउन का बनना नामुमकिन है। इन दोनों इलाके के जो लोग हैं 6 महीने के लिए, समझ लीजिए कैदियों की हालत में रहते हैं, कैदी की तरह कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई हर तरह की तकलीफ 6 महीने के लिए उनको होती है। तो मेरी इनसे गुजारिश है, इसमें थोड़ा ये जल्दी करें कि DPR बना के सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजे, ताकि इन दोनों इलाकों के लिए करना। और ये तो रहमान फराज साहब। शुक्रिया सर। मेरी गुजारिश सर आप ही से है, इस सारे हाउस को लेकर 2-3 इशू से हमें बहुत यहाँ पे जो जैसे PSA का एक मुद्दा उठा और रेजोल्यूशन का मुद्दा उठा, इस बात में कोई शक नहीं सर। 5 साल के बाद जब इलेक्शन हुए, वी आर इन अ ट्रांजिशनरी फेज, और इस फेज में इस हाउस की कमजोरी हम समझते भी है, और मेरे ख्याल में 90 में से 90 MLA ये समझते हैं कि बाहर हमारी हालत इतनी खराब है कि पहली बार इतने वोट डाल के लोगों ने बड़ी उम्मीद से वोट डाला, और हुकूमत हो, मिनिस्टर हो या MLA साहिबान हो, जो भी है, हम सबकी सुनवाई नहीं है ऑन द ग्राउंड, और प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट इज ऑल्सो वेरी स्लो। हम जब PSA की बात करते हैं, महराज मलिक की बात करते हैं, इट्स नॉट अबाउट कि आप लोगों ने PSA किया और हम उसके खिलाफ हिंदू मुसलमान की वजह से हंगामा करते हैं। गर्ज ये है कि MLA का इंस्टीट्यूशन इरोड हो रहा है, हाउस इरोड हो रहा है, और अगर ये इरोड हम पे होगा, आप पे भी होगा। कल आज आपकी हुकूमत है दिल्ली में, कल चेंज होगी, फिर यही PSA UATA आप पे भी लगेंगे। इसलिए एक प्रेसिडेंस रॉन्ग सेट हो रहा है। खुदा न खास्ता आज जिस चीज को हम नॉर्मलाइज करेंगे, ये कल आपके बच्चों के लिए नॉर्मलाइज होगा। सेकंड इंपॉर्टेंट इशू, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट रैशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन, वी आर नॉट अगेंस्ट रिजर्वेशन। हम समझते हैं हमारे भाई बहन पहाड़ियों पे रहते हैं, सख्ती में रहते हैं, EWS में काफी लोग गरीब भी होते हैं, उनको मदद की जरूरत है। लेकिन सर व्हाट्स हैपनिंग इन जम्मू एंड कश्मीर, दैट कश्मीर हैज सीन वायलेंस, मिलिटेंसी, सेपरेटिज्म, एवरीथिंग वी हैव सीन। यहाँ एक वक्त था जब आवाज उठाने के लिए हमें बंदूक उठाना पड़ता था, पत्थर उठाने पड़ते थे। आज उन्हीं नौजवानों ने आपको वोट दिया, आपको भी, हमको भी, और आपकी जमहूरियत को भी वोट दिया, जिसका डोल पूरी दुनिया में प्राइम मिनिस्टर ने, होम मिनिस्टर ने, BJP ने पूरी दुनिया में दिखाया कि कश्मीर में जमहूरियत आई, 70% टर्नआउट हुआ। हालांकि जमात इस्लामिया ने भी वोट डाला। उसके बाद उस जमहूरियत की कदर करने का मतलब ये नहीं है कि ये सरकार किसकी है, चलने देना हर किसी की सरकार। मेरा इंपॉर्टेंट मकसद हो गया सर, लेट मी कंप्लीट सर, प्लीज सर, एक सेकंड। आपने 2 इशू उठाए, एक ही उठाना था, और प्रश्न की आगे देखेंगे, कोई बात। आप प्रश्न पवन गुप्ता जी, स्पीकर सर, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने ये मौका दिया है, यहाँ पर भी हमारी ऑनरेबल मिनिस्टर मीना की जो बैठी थी, मैं उनके नोटिस पे ला जाता हूँ कि उदयपुर के अंदर में हमारा हॉस्पिटल के काम टोटल बंद हो गए क्योंकि पैसा नहीं आ रहा है।
नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने इसमें कहा था कि इसकी डीप इंडस्ट्री के लिए हम ITI को यहाँ से हटाएंगे और उसको स्टेट को 60 लाख का देना। उन्होंने मैंने कई बार से मिला उसने मिला और अभी तक वो ट्रांसफर नहीं किया। हमारा DMC का आपके माध्यम से ये ऑनरेबल मिनिस्टर को कहना चाहता हूँ कि इसको रिजॉल्व किया जाए। सेंटर से जो पैसा आना है तो मैंने सेंटर में चिट्ठी लिखी है, मैं उसको तैयार कर रहा हूँ, डॉक्टर की सर्विस को ले रहा हूँ, बट whatever formalities are required from their end, they should also complete the formality so that the money comes and the work does not get started. आज यही मेरी प्रोग्राम है। मैं आपके मुस्ताक मसद से जो हमारी PHC होती है सर, हम मेरे इलाके में मुझे हमने एक लालपुरा व्हाट्सएप स्कीम में मुझे 90 डिस्ट्रिक्ट हुआ उस लेवल से ज्यादा कि आप ह्यूमन कंजप्शन के लायक नहीं हो पाए। ठीक है सर, इससे मसला ये हुआ सारे इलाके में सारी दूसरी पानी की कमी। ऐसे ही मामला एक पूरा मानपुर में हुआ था और पानी का था। तो मैं चाहूँ इस वक्त पूरी तौर पर दूसरे साहब मौजूद है इनके पास रहकर 2 टैंकर पूरा सब डिविजन PHC और मानपुर सब डिविजन अपने उपासना करें ताकि हम पोर्टेबल वाटर का उस स्थिति का इंतजाम कर सके होगी। पूरा पानी का होगा और पानी का होगा। सलमान सागर सर। काफी लोगों को सर उम्मीदें हैं हमसे कि हम इस छोटे सेशन में बहुत से क्वेश्चन रेज करेंगे, बहुत से इश्यूज हैं। तो गुजारिश करूंगा जैसे जनाब ने भी फरमाया, पहले तो शुक्रिया से और भी डिस्कशन हो रहे हैं वो अफसर सुन रहे हैं और मिनिस्टर साहबान भी है। लेकिन अगर कल भी मौका दिया गया जितने ज्यादा मेंबर्स हो अच्छी बात है। तो अभी भी इस वक्त इमीडिएटली जिलाओं में जो खिदमत सेंटर के एम्प्लॉयज है हमारे जो बैंक में काम करते थे उनको अपॉइंट किया गया 2009 में। सर ये कोई 1200 के करीब मुलाजमी है खिदमत सेंटर के और 2014 से इनकी सैलरी बंद है, 7,500 इनको मिलता था वहाँ। तो ये हर जगह जाते हैं, बहुत से शहर MLA से मिले होंगे, यहाँ बहुत से MLA से डेलीगेशन गए होंगे, लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं है। काम इनसे अभी लिया जा रहा है और इनको डिसेंगेज तो नहीं किया गया, लेकिन वायलेशन ऐसा राइट्स बेसिक राइट्स की वायलेशन है। इनको तनख्वाह नहीं दी जा रही है 2014 से, उनकी रिवैल्यूएशन की डिमांड है। रिवैल्यूएशन के लिए ये कहूंगा कि डेली वेजेस का सवाल है ये आगे, लेकिन सर शुक्रिया स्पीकर साहब। जनाब मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी जो नई हस्पताल के मुताबिक हाल से लेकर बेचड़ा तक है, उसमें 3 खासियत और पॉइंट बुला रहे हैं। पिछले दिनों में कुछ जो आग लगी वहां का काफी नुकसान हुआ लोगों को। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक भी फायर स्टेशन नहीं है। तो मैं सरकार से गुजारिश करना चाहता हूँ इससे कोई मुंह और दिल सर्वपूर्ण है। फायर स्टेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो मैं सरकार से ये गुजारिश करना चाहता हूँ पूरी तौर वहाँ पे फायर स्टेशन बहुत जरूरी है ताकि लोगों को थोड़ी से राहत। सर मैं बड़ा इम्पोर्टेंट इशू है खासकर के पीर पंजाब के लिए। हमारे जो बच्चे पहाड़ी कम्युनिटी ST से हैं सर, उनका स्कॉलरशिप अभी तक बच्चों को नहीं मिला है। बच्चे पोस्टल के दूर दराज गाँव के अंदर बैठे हुए हैं सर। अक्टूबर का महीना चल रहा है, एग्जाम आने वाले हैं। मेरी स्पीकर सर आपसे गुजारिश है इस मसले को जरा इम्पोर्टेंट समझते हुए डायरेक्शन आपकी तरफ से चल जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा मसला मैंने ऑलरेडी जो है इसको 2-3 बार टेकअप किया लेकिन इस पे हो नहीं रहा है। और खास करके हमारे पीर पंजाब के जो हमारे पहाड़ी बच्चों के खिलाफ साजिश हो रही है, इस साजिश को जो है सामने लाना पड़ेगा। कौन लोग हैं जो इसको रोक रहे हैं? क्यों बच्चों को उनका हक नहीं मिल रहा है? क्या हम बच्चों का हक नहीं बनता कि वो अपना मुस्तकबिल जो है बेहतर कर सके? आज बच्चों को सड़क पे आना पड़ रहा है। मेरी आपसे सर गुजारिश है प्लीज सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर यहाँ बात हुई फ्लड डैमेज के हवाले से, बात हुई सर। दोनों सूबों में बहुत बड़ा नुकसान, चाहे वो बागात का था, फसलों का था,
बहुत बड़ा नुकसान हुआ, उसकी चर्चा भी हुई, लेकिन एक तरफ ध्यान नहीं दिया गया सर कि एक बकरवाल खाना बदोश कम्युनिटी है सर, जिनका माल मवेशी का इतना बड़ा नुकसान, चाहे वो किश्तवाड़ के इलाके बाड़वान वगैरह में हुआ, चाहे रास्तों में हुआ, उनकी कोई तशखीस नहीं है, कोई उनकी सर्वे नहीं है, उन विचारों को ऐसे ही छोड़ा गया है। इसी के साथ साथ सर, जो गुजर बकरवाल कम्युनिटी के लोग कहीं जंगलात की जमीन पर बैठे हुए थे, उन्होंने मकान बनाए हुए थे, पुख्ता मकान बनाए हुए थे, वो जमीनें धस गई सर, वो मकान टूट गए। पठानिया साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी में सर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके घर वहां उजड़ गए, और अब उन्हें यह कहा जा रहा है कि आप चूंकि जंगलात की जमीन पर थे, ना आपको कोई जमीन मिलेगी, ना आपको कोई मुआवजा मिलेगा। इस चीज की तरफ ध्यान देने की जरूरत है। एक इशू सर थोड़ा सा कि सर ऊन के लिए सर एक जमाने में एक बोर्ड बनाया गया था वूल बोर्ड के नाम से। आज वो ऊन सर 10 रुपए 12 रुपए किलो के हिसाब से लोगों को लूटा जा रहा है, उनको कोई फायदा उसका नहीं मिल रहा है। उस चीज के लिए उस वूल बोर्ड को दोबारा रिवाइज करने की जरूरत है। जावेद राणा साहब, ये मिनिस्टर साहब रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं किसी बात? और ये मिनिस्टर साहब ने एक बड़ा इशू हो गया, पहाड़ी कम्युनिटी जो है वो इस जिले में आई और कुछ दूसरे कबाइल भी इस जिले में आए। जो सोशल वेलफेयर देखता था, आप सोशल वेलफेयर से जब वहाँ से ट्रैवलिंग किया गया स्कॉलरशिप का, ये स्कॉलरशिप नहीं दिया जाता। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को रिव्यू किया, और मैं उसकी जानकारी के लिए ये बता दूं कि पिछले दिनों ही हमने 16 करोड़ 63 लाख जो है वो स्कॉलरशिप के लिए रिलीज कर दिया गया है, जो ट्राइबल डिपार्टमेंट के पास पहुंच गया है, और वो हो जाएगा। मैं ऑनरेबल साहब को ये यकीन कराता हूँ कि किसी भी कॉन्स्पिरेसी को इस बाजार में जो एक का इजहार किया है कि वहाँ एक कॉन्स्पिरेसी हो रही है, तो मैं इजहार करूंगा कि कॉन्स्पिरेसी को दबोच दिया जाएगा और कॉन्स्पिरेटर का काला काम कर दिया जाएगा। सर जल शक्ति के साथ बूटी पत्रा से गली एरिया में इस्तेमाल कर रहा है। जो पाइप लाइन उन्होंने लाई है वो ऊपर से भी ले आए, नीचे से कोई ज्यादा से ज्यादा 50 मीटर एरिया जो है उसको आपको करेक्ट। ये अगर बर्फबारी हो गई बीच पर तो ये बंद हो जाएगा और ठंडी के लोग बारिश की वजह से सफर करेंगे। मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरी बात ऑनरेबल मिनिस्टर साहब तक पहुंचा दें कि फॉरेस्ट कानून में आगे से भी काम हो गया, इस साइड से भी काम हो गया, बीच में एक जगह काम रोक दिया है। अगर डायरेक्शन चली जाएगी इसको पाइप में जोड़ ताकि जो ठंडी और रूरल बेल्ट के लोगों को इस वक्त पानी की प्रॉब्लम से उनका ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा। मैं आपका भी मशहूर होगा और आप शुक्रिया सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया। सर जिस कंट्रेंसी को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ वो एक बार कंट्रेंसी है, फिर जस्ट लाइक के बहुत से 3 अरकाब से बालों में इसको घेर के रखा है और जो सड़क ऐसा उतारना है। हमारे लोग कई मुश्किलात से दो चार हैं सर। अगर हेल्थ सेक्टर की बात करें, एजुकेशन करें, पीटीडी करें, रोड सेक्टर की बात करेंगे तो सर अभी हमारे 3 इलाके ऐसे हैं जो 1947 की पोजीशन में हैं। डिलिमिटेशन के बाद हमें एक कम्युनिटी के साथ ये करना और एक इंडिपेंडेंट कंट्रेंसी डिक्लेयर किया जाएगा, लेकिन हम फॉर्चुनेटली उसका ब्रेक्स
हमारे साथ जो किबाल वाले एरिया को भी लगाएगा, जिसकी आवाज 50,000 के आसपास है और 20,000 वोट हमारे साथ ऐड किए गए। सोचा ये था सर कि ये इलाका थोड़ा सबसे डेवलप होगा, लेकिन जिसकी हालत गंगा के इलाके से बेहतर है सर, जिसकी जिंदा मिसाल सर मेरा एक इलाका है नमक बंदे जी सर से, जहां आज तक पावर यदि वहां पे पावर सप्लाई नहीं की है, लोग पावर से महरूम है, वोट से महरूम है सर। मेरी आपके माध्यम से गवर्नमेंट से ये पुरजोर अपील है सर कि इस इलाके को जल्द से जल्द पावर सप्लाई से जोड़ा जाए, रोड से जोड़ा जाए। और हेल्थ सेक्टर की बात करें सर, हेल्थ सेक्टर में मेरा आज सवाल आया था सर, तो उसके लिए मैंने आज का मैसेज किया, मैं चाहूंगा सर कि आप हमें खासकर जो हमारे जो जूनियर है साथ यहाँ पे जो पहली बार हम कहें तो ज्यादा से ज्यादा मौका दिया जाए ताकि हम भी अपने इलाकों के लोगों की नुमाइंदगी कर सकें सर। एक और सर बात में लेकिन हमारे लोग उसमें कहीं अफेक्ट हुए सर। मैं सिद्धार्थ साहब की बात के साथ पूरा हमारे इलाके के लोग सर अभी भी यदि रिलीज से महरूम है, कई इलाकों पे सर जिनके ऊपर डायरेक्ट मकान जिनके हेड में सर टोटी कमरे हुए पार्टी हुए उन्हीं भी मिलते सर, लेकिन आज तक सर गवर्नमेंट की तरफ मैं चाहूंगा सर कि डीसी से ये पूरा जो भी रंगे एक्सेप्ट मका के उन लोगों के हाथ में शुक्रिया। गाँव है कावल, वहाँ पे 400 कनाल खरीद जो स्टेट है वहाँ पे मैं ऑनरेबल मिनिस्टर से गुजारिश करना चाहूंगा कि अगर वहाँ पे एक इंडस्ट्रियल एस्टेट वहाँ पे एस्टैब्लिश किया जाए ताकि जो कोल्ड स्टोरेज की बात है, जिस तरीके से हमारे फ्रूट को रोका गया, जावेद डार साहब यहाँ पे ऑनरेबल मिनिस्टर साहब है, ये रियाज खान साहब सजाद शाहीन साहब, हम वहां पे गए किस तरीके से उन गाड़ियों को रोका जा रहा है और डेलिब्रेट एक्ट का, क्योंकि हिमाचल के फ्रूट को अपलिफ्ट करने के लिए हमारे फ्रूट को हमारा एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर को खत्म करने के लिए साजिश की तारुफ होगी। अगर वहां पे कोल्ड स्टोर होते, अगर वहां पे कोल्ड स्टोर होता तो वो इतना जितना भी फ्रूट वहां पे जाया होगा वो नहीं होगा। और अनंतनाग प्रोग्राम में एक भी इंडस्ट्रियल ऐसा नहीं है जहाँ पे कोई जगह हो। और मैं गुजारिश करना चाहूंगा ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर से और ऑनरेबल एग्रीकल्चर मिनिस्टर से कि ये जो है ये सत्य जो 400 करोड़ जमीन भागे बरसात में जो नुकसान हुआ है, नुकसान बड़ी में भी काफी ज्यादा हुआ है। 2 इलाके मेरे ऐसे हैं जो टोटली खत्म हो चुके हैं, एक मोहार एरिया है और एक जो अभी हाल ही में सीएम साहब ने बहुत विजिट भी किया था, वहां ना कोई घर बचा है, ना स्कूल बचा है, ना हॉस्पिटल बचा है, ना लोगों की जमीन बची, टोटली सब कुछ खत्म हो चुका है। और मैं चाहता हूँ कि उनको कोई ना कोई सहूलियत दी जाए। अभी वो लोग अपने आप को खड़ा करने के लिए, घरों को बनाने के लिए लकड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वहां जो लकड़ी गिरी हुई है वो भी वहां से उखाड़ी नहीं दे रही है, वो भी उनके ऊपर चार्जेस लगाए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको फाउंडेशन की जा रही है, उनको इसमें दिक्कत आ रही है। मैं आपके माध्यम से मंत्री साहब के नॉलेज में एक बात लाना चाहूंगा।